Greetings of Vaheguru to everyone. For quite some time, I have always been starting in English, but shifting more to Hindi because if at all someone is listening to my episodes, then here in India, everyone understands Hindi also. So I think it is better that my 70 to 80% is in Hindi. Later on, I shift to Hindi. But I start with English for my, non-Hindi speaking people. There are so many of them. South also, and globally also. So let me start today. It is 14th of August, and 2024. And I have not many things on my mind to say, but let me put it the way it comes to my mind. And it is morning 6:45 p.m. My milk is about to come because it was raining. Whole night it was raining, and incidentally inverter also is not working, so I am sitting out and trying to record it early morning. 6:45. So which means, but I'll upload it only at 4 p.m. So this is episode 20. So okay, let me start now. So what do I talk about? For last two episodes, I believe. Yeah, 18th 2 parts, 19th whole of it. It was obviously focused on Bangladesh because it has been I will not call it setback because I don't think like an Indian. As I said before many times, that I am a person who has no country, who has no religion, who has no caste. And my name also incidentally is a Hindu name, but I'm not exactly very happy or proud about it. Sudarshan means, it reminds everyone of the Sudarshan Chakra of Krishnji. But as far as my views about Sanatan are concerned, you may not like it, but I will speak the truth because I see what the truth is. Truth is all this Sanatan Dharam, because I came to know all these Kathain of Hindu Sanatan Dharams when I was in Vrindavan for 3 months. There, Gaurdas Ji Maharaj, Gaur Kirpa Dham, and emotionally I made someone Guru also who used to serve cow. So having stayed in Vrindavan for such a long time, 3 months, 16 days, has given me a lot of deep knowledge about my own religion. I mean, own in the sense that I was born in a Hindu family. Now, I will here also speak about my family members' religious practices. Because all these memories, I'm 74 now, 74 and 6 months. And all these religious practices have made an impact on my mind since childhood. So I don't mind speaking about that also. But let me cut it short and say that in Vrindavan, what I learned was about Sanatan was, I'm seeing from my point of view, my scientific, empathetic point of view, stoic. That if I cannot change others, I will change my own thoughts. So my own thoughts are as I believe it, but I'll speak it very soft and very indirectly. Directly I cannot speak. Because otherwise, there is so much of Kattarpan in Hindus also, and they can also come and harm me. That according to me, all these Sanatan stories, these are just stories, mythological. So all these, Brahma, Vishnu, Mahesh, Krishna, Ram, ye, wo, Gaurdas ji, Kathain, and so complicated, so elaborate, and such juicy Kathais, they all were the brain of one person mind, one person, just one person.
So that one person created all these epics, including Mahabharata, Ramayana. I mean, you'll be surprised. These are all fictional stories, imaginary. They're never, I'm sorry to say that. In reality, these characters did not exist. Never. Because scientifically, there has to be a radiocarbon test for anything that is picked up as a evidence. But here we create the evidence, no? So you all know in scientific research how things at interpretation stage, we see what we want to see. So, and that one person who created all these epics of Sanatana Dharma was Ved Vyas. So all these, Gita you read, Bhagavad Gita and all shloks, see, it was Ved Vyas' creation. It was his fertile mind. So all this dialogue between Krishna and Arjun, all this Gita shlok, people, I don't know. I know it's good. It's very good. I've read Gita many times. I think over a dozen times. And in Bhakti Bhav, I also, 10,000 times daily, 10,000, more than 10,000 times. Sometimes I do 12,000 also, sometimes. But I have not been able to achieve that 21,600 times mantra, Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So all this I don't know whether I have seen in Vrindavan people, doing all this narration, but the show is too much. They have a potli, and the potli is given by Guruji, and your one hand should be in the potli. Potli should be kept in the. And I remember Tulsi Ma, she was very fussy about potli. You have to do this, you have to do that. She used to scold me, Anyway, I respect all those things. This ritualism, I call this karma card. So karma card also sometimes helps you. Anything that helps you is good. Anything. Your faith also, if it helps you, it's good. So let me first shift to what I was talking of. Not Vrindavan, not Ved Vyas, not... Because other religions have deep knowledge. You'll be surprised to know that all the world religions have done deep study except my own religion. So this Vrindavan stay gave me an opportunity to understand my own religion. And at that time, I also started considering these are real things. But these are like Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, he was such a realistic character in the West. And the creator of that character, Sherlock Holmes, Sir was the knighthood given by Queen, King or Queen, whatever. Sir is Upadhi. Sir is not a normal word. Sir is a proper imperial rank. So Sherlock Holmes was an imaginary character. So Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, when he got old and he was sick of writing novels and creating this fiction. So in one particular episode, what he does is he finally says, I want to end it. So he kind of kills Sherlock Holmes. And mind you, Europeans also are like Indians only. They see what they want to see. They believe, faith. For them, Christ is a matter of faith. So I have come all above it. My field is now science and scientific method. Science is noun. Noun has no meaning. Unless noun is created into verb, there's no meaning. A pen is a noun. But what does pen do? Write it. So anything that writes is a pen for me. So I believe all our Sanatana Dharma also is all fictional characters. Stories after stories. And when I started reading that Puran, my God, it was such a horrible thing. And then after about 100 pages, I left it. Because it was written Shiva, his wife Sati, and he was in love with that. And then Sati also died. And Sati goes to her father's home, and Shiva says, don't go. She says, no, I will go. And then she goes, and then she destroys the Havan, and then when he gets the news from some Narad Muni, it's all juicy and story and interesting. And then he keeps, Tandav Nritya,
he dances, and all other devtas are worried, and then that Sati, when some other devta comes and he cuts Sati on, she's on the, वो कंधे पे रखी हुई थी सती उनकी, और उसके फिर वो पता नहीं 52 पीसेस बनते हैं, विद्यापीठ में गिरता है जाके, यार मैं वो अभी देख रहा था। एनीवे, लेट मी नॉट टॉक ऑफ सनातन, लेट मी focus on what I want to say. Let's come to Bangladesh first. So Bangladesh, within 4-5 days, what has impressed me and pained me, it has pained me, मुझे दुख भी बहुत हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि मोहम्मद यूनुस जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, प्राइम मिनिस्टर कह लो या मेन पर्सन कह लो, ही इज द पर्सन, ही इज डन सच ए ह्यूज गुड थिंग फॉर हिज कंट्री, ग्रामीण बैंक, एंड क्या उसकी लाइफ से नोबेल प्राइज मिला उसके लिए उसको। तो एक तरफ नोबेल प्राइज विद क्लीन हार्ट, नाइस हार्ट, डीप हार्ट, एंड एक तरफ हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं क्या बोलूं, एक नोबेल प्राइज और दूसरा बिल्कुल ही झूठ और मक्कारी से भरा हुआ। तो मुझे अच्छा क्या लगा, बहुत अच्छा लगा कल जब मैंने एक यूट्यूब उसमें देखा कि मोहम्मद यूनुस इज गोइंग टू टेम्पल जो जला दिया गया था हमारा हिंदुओं का, इस्कॉन, वहाँ पे विजिट किया उसने। और सबसे बड़ी बात है उसके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, मंत्री तो नहीं एडवाइज़र कह लीजिए, माफ़ी मांगी, हिंदुओं से माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया, सॉरी कहा कि ये मेरी फेलियर है। आई मीन, कैन यू इमेजिन एनीथिंग हैपनिंग इन इंडिया लाइक दिस? हम लोग मैनर से दूर हो चुके, तमीज़ से दूर हो चुके हैं। हमारा अपना ये पार्टीशन हुआ, आज 14 अगस्त है, हम एक हमारे टुकड़े करके चले गए अंग्रेज, उनका कोई मतलब ही नहीं था। काली मिर्च बेचने आए थे, उससे ज़्यादा उनका कोई काम ही नहीं था, खरीदने आए थे। उनको काली मिर्च देकर उनको विदा करते हैं, हमने उन्हें हड़पने दिया। तो उन्होंने फिर जब वो यहाँ से गए तो 15 अगस्त कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, बट आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। हम में से किसी को भी, बहुत कम लोगों को तमीज़ होगी कि हम पाकिस्तान को भी, चाहे जैसा भी है, भाई है तो हमारा भाई भाई है, दोस्त होता है, भाई होता है। बट हम इंडिविजुअल लेवल पे भी, फैमिलीज में भी मैं यही देखता हूँ कि सारे दोनों रिश्तों को हमारा माइंड ना मिक्सअप भरता बना देता है। दोस्त अच्छा है तो अच्छा लग रहा है तो अब दोस्त तो नहीं रहने देना ना अब उसको स्टेटस हाई करनी है, बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ इमोशनली नेशनल लेवल पे भी हम यही करते हैं गलती, और इंडिविजुअल लेवल पे भी यही करते हैं। ये हमारे सनातनियों का ये कमाल है मेन कि दोस्त अगर अच्छा है तो उसको कहो तू अब मेरा भाई है, अब तो तू मेरा भाई बन गया। तो ये हमारी एक वीकनेस है इंडिविजुअल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, कि दोस्त अच्छा लगता है तो उसको भाई बना लेते हैं। जैसे नेहरू जी ने भी ये गलती करी थी इंडोनेशिया में, बांडुंग में, जब पंचशील कॉन्फ्रेंस हुई थी चाउ एन लाई के साथ। तो चीन हमारा दोस्त बनना चाहिए था, नेबर दोस्त होता है। बट नेहरू जी का नारा क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई क्यों नेपाली भाई नहीं है क्या? बांग्लादेशी भाई नहीं है क्या? सारे दुनिया हम एक हैं, पूरी दुनिया, अर्थ का हर आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सब भाई बहन है। भाई बहन भी, मुझे तो कोई भाई कहता है तो मेरे को तो फिर बहुत बुरा लगता है। अब आप पूछोगे क्यों बुरा लगता है? भाई का मतलब क्या है कि मेरे फादर में और जो मुझे भाई बुला रही है उसकी माँ में कोई रिश्ता था क्या? तो बहन कहाँ से बन गई मेरी? तो भाई बुलाना, बहन बुलाना अपने माँ बाप के करेक्टर के ऊपर, सेक्सुअल करेक्टर के ऊपर ब्लेम करने वाली बात है। चलो उसको भी नहीं, छोड़ो, वापस आ जाते हैं। तो हिंदी चीनी भाई भाई पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोस्त को भाई बना देते हैं। पर जो मैं अभी इस गांव में भी देख रहा हूँ, इस जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी देख रहा हूँ, मगर जो सच में भाई है, सच में, जैसे पाकिस्तान सच में हमारा भाई है, तो भाई के साथ मैंने देखा है यहाँ पे दोस्ती भी नहीं रखते, कट्टर 90% यहाँ के लोग, मैंने जितने यहाँ इस गांव में छोटे से 1400-1500, यहाँ एक जहाँ मैं पहले जाटव घर के में रहता था, वो 2 भाई बड़े आपस में मिलके रहते हैं। 40-50 का परिवार है। एक आध कोई ऐसा मुझे मिला है जहाँ पे भाई आपस में। तो इसीलिए मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि दोस्त को हम भाई बनाते हैं और भाई से दोस्ती नहीं रखते।
ये तो इंडिविजुअल भी इंडियंस का ये हाल है। घर घर में लड़ाई हो रही है, और लड़ाइयाँ क्यों होती है उसकी भी डीप उसमें क्या क्या रीज़न होता है। भाइयों में क्यों नहीं बनती? भाइयों में बनती हैं, मगर वो भाई जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो अपनी बीवियों के कहने से ना वो इस तरफ चल पड़ते हैं और अपने ही भाई से। और सारी लड़ाई की जड़ तो प्रॉपर्टी है ना, लैंड है, ज़मीन है। इसीलिए मैं कई बार मजाक में बच्चों को भी कहता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ हाँ, नानी तुम्हें सिर्फ प्यार देती है, मगर जो दादी है वो तुम्हें ज़मीन देती है, जायदाद देती है। बोलो नानी का प्यार चाहिए या दादी की ज़मीन चाहिए? तो ज़्यादातर लोग बच्चे भी चलाके हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो ज़मीन जायदाद चाहिए, पहले पहले पैसा चाहिए, खाली प्यार से क्या होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो मुझे अच्छा लगा उनका माफ़ी मांगना, मोहम्मद यूनुस का इस्कॉन टेम्पल में जाना, और ये सारा झूठ साबित हो गया है कि कोई हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत जो इंसिडेंट हुई है छोटी मोटी, वो उन्होंने कंट्रोल कर ली है। और सबसे बड़ी बात है, मॉरली नैतिकता के आधार पे माफ़ी मांगी है। तो मैं आज क्योंकि हिंदू घर में पैदा हूँ, तो मैं मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। 14 तारीख है, पाकिस्तान का जन्मदिन है, उनको बधाई दे रहा हूँ मैं। और कल हमारा है। और मेरी अपनी ओपिनियन मैंने एक एपिसोड में डाली थी कि मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे कोई खुशी मनाने का दिन नहीं है, शर्म का दिन है, दुख मनाने का दिन है, अफसोस का दिन है। अफसोस का दिन क्यों है? क्योंकि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट वही है। वो किसी की खांसी की आवाज़ आ रही है ना, वो उनके मेरे नए लड़के ससुर आए हुए हैं, उनके भी क्या क्या पता, छोड़ो। तो बस हम लोग नहीं, जो मेरी नज़रों में एक आदर्श एटीट्यूड होना चाहिए वो नहीं है, मैं नहीं देखता। इससे मैं थोड़ा सा फिर परेशान रहता हूँ। और मैं स्ट्राइक बन चुका हूँ कि जब आप चीज़ें कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, जिस वातावरण में, जिस समुद्र में आप रह रहे हो, नफ़रत के समुद्र में मैं रह रहा हूँ, मुझे मालूम है, गंवारपन के समुद्र में मैं रह रहा हूँ, बेवकूफ़ी के समुद्र में रह रहा हूँ, मूर्खों के समुद्र में रह रहा हूँ। सारे मूर्ख भरे हुए हैं, और इतने मूर्ख भरे हुए हैं जो गुटखा खाए जाएंगे, बीड़ी पिए जाएंगे, खाऊं खाऊं करते जाएंगे, मगर वो छोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। क्या मैं बोलूं? तो अब मैं फिर अपने विचार बदल लेता हूँ भाई। मुझे वो कबीर का दुआ बड़ा अच्छा लगता है कि कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकटियन के पास। गलकटियन मतलब जो पशुओं के गले काटते हैं। यहाँ मैं मुसलमानों के इन चीज़ों का मैं खिलाफ हूँ, ये बकरीद और ये और वो क्या। मुझे जब कहानी सुनाई कि वो अपने उनके बच्चों को कोई सेक्रीफाइस करने को परमात्मा ने कहा, सपने में आया, परमात्मा ने कहा, उसने शुरू कर दिया, हाँ मैं अपने बच्चों को काटूंगा, मगर वो बच्चे भीड़ बन गई। क्यों भीड़ को क्यों काटो? फिर अपने बच्चों को ही काटो ना। फिर ये भेड़ का बहाना, बकरी का बहाना क्यों किया? खाने के लिए। मैं तो अब चींटे को भी नहीं हो जाता। एक टाइम था बहुत ज़्यादा मैंने खाया, मुझे याद है, मैं अपनी वाइफ को भी कहता था। अब वो 30-40 साल पुरानी बात होगी, सारा मैंने किताब लिखी है पूरी उसमें बीफ के ऊपर। तो चलो मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि पाकिस्तान का आज आज़ादी का दिन है, हमारा कल है। तो चलो ये आपको बता दूँ 15 अगस्त क्यों चुना गया, इस बारे में थोड़ा बताऊँ। 15 अगस्त क्यों चुना गया? 15 अगस्त को हमें आज़ादी क्यों मिली? 15 अगस्त की क्या अहमियत है? अब हम लोग 15 अगस्त मना तो लेते हैं, इंडिपेंडेंस कर तो लेते हैं पाकिस्तान में भी, मगर ये नहीं पता कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कि ये डेट क्यों चुनी गई। तो चलो आज मैं इसी चीज़ को बना के ख़त्म करूँगा, ये फिर अपलोड करूँगा 4 बजे। तो ये मेरी तरफ से ये नॉलेज आपको कंट्रीब्यूशन हो जाएगी आपकी आज़ादी के दिन की। कि हुआ ये था कि ओरिजिनली 26 जून 48 को देनी थी आज़ादी। ये मुझे वो फ्रीडम एट मिडनाइट किताब से पता चली, जो एक फ्रेंच और ब्रिटिश ऑथर ने लिखी थी मिल के। लाखों 10 लाखों बिक गई वो। एक मास्टरपीस है वो। तो उसको मैंने अपने बचपन में, यंग में, जब बहुत किताबें पढ़ते हैं उसको भी पढ़ा, फिर 2 बार ही पढ़ा, 3 बार, मज़ा आ जाता है उसको पढ़ के। तो उसमें ये लिखा है, रीज़न लिखा है कि माउंटबेटन को जब यहाँ भेजा गया, चर्चिल ने भेजा था, एटले इंग्लैंड, मुझे प्राइम मिनिस्टर भी याद, चर्चिल ने श्राप दिया था, कहते हैं ये 100 साल भी अपनी आज़ादी को रख नहीं पाएंगे, ये जो काले लोग हैं। वो हमें काले लोग कहता था। और
उसकी बात सही निकल रही है। 70-75 साल हो गए, देखो क्या हमने भर गए हम स्काउंड्रल्स। कमा रहे हैं, अभी भी उतने ही कमा रहे हैं, जातियों में भरे हुए। नाम बाद में पूछते हैं, जाति पहले पूछते हैं। जातियों में हमने अपने समाज को जहर को फैला दिया पूरा, और आज पूरा हमारा स्ट्रक्चर किस किस को नहीं कर सकते। आरक्षण भी तो उसी का ही एक हिसाब है। तो ये हमारा मिल्क वाला आगे, चलो रख दो बेटे, रख दो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रख दो रख दो। सो ये जातियों की प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, चीज़ों की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। और मैं इन चीज़ों से क्या बताऊं, इसीलिए मैं एक छोटे गांव में आ गया हूँ, यहाँ बस गया हूँ। घर मुझे जेल जैसी दीवारें हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, दिखाऊँ आपको। ये अच्छा है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं करता, मैं अपने बाहर भी नहीं निकलता। पूरे इस गंदे इस धरती के मूर्ख इंसानों ने क्या बना दिया। उधर से इजराइल और वो लड़ रहा है, मिसाइलें चला रहे हैं, 40-40 हज़ार बच्चे मार रहे हैं। उधर से चाइना इंडिया के बीच में बर्मा, ये बांग्लादेश क्या है, ये अमेरिका की कहानी है। वो अपना एक नया देश बनाना चाह रहा है, सबसे छोटा कल्चर है, अभी नया नया तुम पैदा हुए हो, 200-250-300 साल हुए तुम्हें, मगर आज पूरे दुनिया का कब्जा कर लिया तुमने अपने डॉलर की बस पे। तो कर क्या रहे हो, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, पहले वियतनाम में लड़ाई, उससे पहले कोरिया में लड़ाई, उसके बाद पता नहीं कहा फिलीपाइंस में लड़ाई, फिर उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम थके नहीं थे क्या, फिर आके अफगानिस्तान में तुमने बहाने से मदर ऑफ ऑल बम्स को मारा। जब अफगानियों ने, तालिबान ने आपको मार मार के भगा दिया, तो फिर अब इसराइल के नाम पे आप करना चाह रहे हो ईरान के साथ। तो मूर्ख हैं हम, सारे महामूर्ख लोग हैं। नहीं, महामूर्ख तो इंडियंस हैं, सनातनी हैं, RSS के हैं, बट पूरी दुनिया के मूर्ख हैं, हम महामूर्ख हैं। तो 15 अगस्त की कहानी छोटे में ये बताती थी कि 26 जून 1948 को हमें मिलना था, बट वो क्योंकि दंगे फैल चुके थे, हिंदू मुसलमान अपने आप को मारने जा रहे थे, तो समझ नहीं आया। वो बहुत परेशान था माउंटबेटन में, कौन सा दिन आज़ादी का कौन सा दिन दूं। तो कहते हैं कि उनकी वाइफ ने हेल्प करी, और बट मुझे जो फ्रीडम एट मिडनाइट से रियलिटी पता चली है कि उसकी वाइफ ने भी नेहरू जी के साथ, उसका थोड़ा फ्रेंडशिप थी या अफेयर था, जो भी था, क्या आपस की बात है। हर इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करने का हक है, मैं इसमें कोई बिलीव नहीं करता कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के लोग भी मेरी लिबरलनेस देख के वो घबरा जाते, कहते हैं यू आर टू लिबरल प्रोफेसर, यू आर टू लिबरल, बहुत लिबरल हो तुम। तो मेरे लिए एक परफेक्ट इंसान की पहचान क्या है कि दिमाग स्काउंड्रल का होना चाहिए, बट दिल साधु का होना चाहिए। एक स्काउंड्रल का ब्रेन और एक सेंट का हार्ट, ये मैंने अपनी बेटी को समझाया था। उसने मुझसे पूछा था, पापा परफेक्ट इंसान कौन होता है, तो मैंने अपनी परफेक्शन की डेफिनेशन तब दी थी जब इंग्लैंड में उसे पाला था मुझे, तो वहाँ भी मैं लंबा टाइम रहा। बेटी याद आती, आज ऑस्ट्रेलिया में है वो आजकल। 20-22 साल से मैंने दोनों बेटियों को देखा नहीं, नाना बन चुका हूँ। तो 15 अगस्त की कहानी चलो जल्दी से बताता हूँ क्या है। तो एडवीना माउंटबेटन ने अपने हस्बैंड को जाके कहा, क्यों परेशान हो? उसने कहा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इनको आज़ादी कौन से दिन दूँ। तो उसने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आप अपनी डायरी देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका क्या था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आपने ख़त्म किया। माउंटबेटन ने ख़त्म किया था, सरेंडर करवाया था जापान को, वो हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम डाले थे। तो 5-8 अगस्त को आपको ध्यान होगा एटम बम डाले गए थे, 5 अगस्त 6 अगस्त को। 12 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया। 15 अगस्त को सेरेमनी हुई थी सरेंडर की जापान की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली उस दिन ख़त्म हुई जब जापान के राजा ने घुटनों पे झुक के, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ वो किया था, बांग्लादेश जब बना था तो सरेंडर किया था। ये भी हमारे नाटक चलते रहते हैं। तो सरेंडर के नाटक में हम उस टाइम भूल जाते हैं कि हम सब बबल हैं, बुलबुले हैं। कभी भी गॉड चाहे तो इस धरती की सब चीज़ें खराब कर सकता है। करोड़ों करोड़ों उसमें हमारा एक ग्रह है जिसमें जीवन मिला हुआ है। बृहस्पति ग्रह हमसे 700 गुना बड़ा है, 700 गुना, 700 ज़मीनें समा जाएं, जीवन तो नहीं है ना वहाँ। मंगल ग्रह पे जीवन तो नहीं है। मैं तो कह देता हूँ कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। वो क्या, मैंने एक किताब पढ़ी थी कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, शुक्र ग्रह से है वीनस। तो मैं मैन को अपने मार्स, मैं मंगल ग्रह इसलिए बोलते, तो मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। मैं मैन,
नेचर ने मुझे मैन बनाया, औरत बनाया होता तो कुछ और थी। मैं कभी अपनी बॉडी को भी देखता हूँ तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता ये 2 निप्पल मुझे गॉड ने क्यों दिए, किसके लिए दिए। मैंने प्रेग्नेंट मैंने होना नहीं, फीड मैंने करना नहीं। तो ये नेचर की मिस्ट्रीज मुझे अब समझ में आ रही है मेरे शरीर की। तो 15 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, सेरेमनी हुई थी, जापान ने सरेंडर किया था। तो माउंटबेटन ने उस अपनी पर्सनल डायरी की याद में उसने कहा कि चलो मैं इंडिया के इन काले लोगों को तोहफा देता हूं कि मैं आज के दिन इन्हें आज़ाद रखूंगा। जब 15 को आज़ाद करना था तो पार्टीशन भी तो करना था। तो किसी चीज़ के जब 2 टुकड़े करने हैं तो छोटे टुकड़े को तो एक दिन फिर पहले दे दो ना, दोनों का एक दिन तो सेरेमनी नहीं हो सकती। तो छोटे टुकड़े को जो 2 हिस्सों में कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो पश्चिमी और उर्दू में बोलते हैं, तो वो उसने एक दिन पहले दे दिया इनको। अगले दिन फिर हमारा था, जब रात को नेहरू जी ने 12 बजे ट्रस्ट विद द डेस्टिनी वाला लेक्चर दिया था लाल किले में। अब हमारे भी देखें मोदी जी देते हैं, क्या देते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि वो क्या बोलेंगे, कितने बांग्लादेश क्या बोले क्या आगे, क्योंकि वहाँ हर चीज़ इंडियन, जहाँ से भी इंडिया की झलक आएगी तो उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं, फिनिश कर देना चाह रहे हैं। तो आज इतना ही मैं करके इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रही है और ये 26 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो इसको मैं आगे फिर आपको बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आया 15 अगस्त क्यों चुना गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के उसमें इंडिया का भी वो चुना गया था। 26 जनवरी मनाते हैं, फिर 26 जनवरी क्यों चुना गया वो भी आपको बताऊंगा। तो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अति ज्ञान विनाश का कारण बनता है। मेरे भी विनाश का कारण मेरा अति ज्ञान है। इस अति ज्ञान को देख के अब तो लोग 74 साल की उम्र में कौन, वैसे आपको लगता है मैं 74 साल का हूँ क्या 74.5 का हूँ, नहीं लगता ना, क्योंकि मेरे अब मुझे अपने फॉर्मूले सफलता के, लंबी आयु के फॉर्मूले मिल चुके हैं कि पैसे के पीछे मैं नहीं भागता। पैसा परछाई है, जितना उसके पीछे भागोगे उतना वो आगे आगे भागेगी, और जितना उससे दूर भागोगे, मैं दूर भागता हूँ पैसे से, तो फिर पैसा मेरा पीछा करता है। और ऐसा पीछा कर रहा है जो मैं बताऊं कि मुझे कई बार मुझे हैरानी होती है। ऊपर मैं अपने सुदर्शन वासुदेव कृष्ण जी को कहता हूँ, जो हरे मंत्रा जपता हूँ। पता नहीं कि आजकल मैं वो दूसरा मंत्र जप रहा हूँ हर थर्सडे को, दादाश्री का वो एक स्नेह लड़की ने मेरे को उसमें कर दिया। और वो मंत्र भी मुझे 21 बार हर थर्सडे को 7 बजे मैं वो मंत्र जपता हूँ। पता नहीं इतने मंत्र जपता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ, उसी वजह से पैसा मुझे छप्पर फाड़ के आता है। उन्हें बताता हूँ मैं कहाँ से आ जाता है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो 28 मिनट होने जा रहे हैं, आज की इतनी कहानी ख़त्म। अगर आपको ये मेरी ठीक अच्छी लगती हैं चीज़ें तो बताइए थोड़ा सा। मेरा भी अब मन करता है कि हाँ, जब मैं इतनी अपने दिल की चीज़ें सारी बता रहा हूँ तो कोई एक आधी सुनने वाला आ जाए तो एक आध तो देख लिया करो, बस एक मेरे लिए बहुत है, 1 या 2। इलेक्शन हो जाए, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ ना, मैं आज आपको बताता हूँ मैं अपना वोट खुद भी अपने को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं मूर्ख हूँ, मैं स्काउंडर हूँ, मैं बदमाश हूँ। मुझे सारी चीज़ें अब समझ में आती हैं, और मुझे पता है जब मैं मूर्ख हूँ मैं अपना वोट किसी अच्छे को, किसी औरत को क्यों ना दूँ, किसी अच्छी कैंडिडेट को क्यों ना दूँ। अब संजना जीती है यहाँ भरतपुर से, संजना जाटव, और जाटव को ये लोग पता नहीं चमार और ये और वो बोलते, मैं नहीं मानता। सिपाही की वाइफ है वो, और राहुल ने उसे टिकट दी, देखो जीत गई वो भरतपुर से। तो संजना को आज मैं फिर से मुबारक देता हूँ आज़ादी का, और उसके थ्रू भी अभी कुछ काम करवाने हैं भरतपुर के, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। आज मेरी इतनी ही, आप सबको बाय बाय। और ये कहानी अभी आगे फिर बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या चीज़ कब कैसे क्यों हुई थी। बट आज का मेरा लेसन ये है कि वहाँ हिंदुओं को कुछ नहीं हुआ। ये आरएसएस की बकवास और ये सारे ये गोदी मीडिया के चैनल पता नहीं यहाँ जीतने के लिए वहाँ फालतू में हिंदुओं को मरवा रहे हैं। कोई नहीं मरा वहाँ पे, कोई कुछ नहीं हुआ, और वो पर्सनल फाइट से हुए, और फिर वो माफ़ी मांग रहा है उनका होम मंत्री। हमारे यहाँ किसी में है इतनी शर्म कि हम मुसलमानों से माफ़ी मांग सकें कि हमने आपके साथ अन्याय किया है? मेरे अंदर वो शर्म है। आप सबको मेरी अलविदा, और वाहेगुरु, वासुदेव वासुदेव, हरि हरि, गोविंद गोविंद, राम राम। थैंक यू।